لیکن ایک یہ سوال نہیں جو میں بات پوچھنے لگا ہوں کہ دو ٹو کا جواب کیا ہے کہ یزید نے قتل کیا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ دو ٹو کے نہیں. تو پھر آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ٹھیک بات ہے کہ جب اس نے نہیں کیا تو پھر یہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ اس کا دفاع کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں کہاں ڈر رہے ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے, ڈریں گے کیوں؟ آپ سمجھے نہیں, تھوڑا سا نا فارمولہ سمجھیں. فارمولہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگرچہ تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان, ان کی زندگیوں کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے. تو اس لیے ان پر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں, کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر تابعین تبع تابعین پر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, بس جھوٹ مت بولو. اب یزید تابعین میں سے نا, صحابہ میں سے نہیں ہے. اب آپ کا دل کر رہا ہے اس کو جہنم بھیجنے کا, بھیج دو, ساتھ ہی لے جاؤ بلکہ اپنے, ہمیں کیا ٹینشن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. ہم یہ کہتے ہیں یزید کے پیچھے صحابہ کے پاس مت جانا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جیسے کیا ہوا, میرے پاس لائبریری میں کچھ بھائی آئے, کہنے لگا ہم آپ سے بات کرنا, ہم ثابت کریں گے یزید جہنمی ہے. آپ لوگ کہتے ہو یزید جنتی ہے. مطلب میں, آپ لوگ, مطلب میں, مطلب آپ کے لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا میرے لوگ کہتے ہیں. ہاں, ان کا میں جواب دوں, پھر جو تمہارے لوگ کہتے ہیں وہ میں بتانا شروع کروں کیا کیا کہتے ہیں, ان کا جواب دو گے تم؟ اب وہ تھوڑا سنبھل کے بیٹھے ہیں. پھر مجھے کہنے لگا اچھا آپ بتاؤ یزید جنتی ہے جہنم میں؟ مطلب پتہ نہیں, پہنچ گیا اگر جہنم تو بتا دوں گا وہاں سے, ملا اگر وہاں تو وہاں سے بتا دوں گا, جنت میں ملا تو وہاں سے بتا دوں گا, مجھے تو پتہ نہیں, عالم الغیب ہوں نہیں میں. یہ سنیں نا, بات سنیں, کام آئے گی. میں ہر طرح سے سمجھا رہا ہوں آپ کو, کام آئے گی انشاءاللہ. فوکس کریں میری طرف. سامنے والا آدمی زنجیروں میں جکڑا بندھا ہوا پڑا ہوگا آپ کے سامنے, جتنی بھننے کھانی ہے نا 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں. یہ توجہ سے سنیں بس میری بات. اچھا جی, اب بھائی وہ ہو گیا سلسلہ, کیا ہوا بھائی نہ جہنم میں گئے تو پتہ ہو, نہ جنت میں گئے پتہ, بھائی پتہ نہیں. اب بتاؤ آگے کچھ اور مزید کرنا ہے یزید کے لیے, کوئی بات کرنی ہے؟ اور آئیے سنیں, فوکس تو کریں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ اپنی مرضی کا جواب لینے کی جلد بازی مت کریں. میں جو جواب بتا رہا ہوں وہ کام آئے گا آپ کو انشاءاللہ. فوکس کریں میری طرف. سنیں, اب تیسری بات جو ہم کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں, چلو یزید کا چیپٹر تو ہو گیا کلوز, کہ وہ کہاں گیا آپ کے حساب سے جہنم میں, جان چھوٹی نا, ہمارے مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یزید کی بیعت کرنے والے اہل بیت تھے, میں نے تو نہیں کی, آپ نے تو نہیں, یزید کی بیعت کرنے والے جو اہل بیت تھے ان پر حکم کیا لگے گا؟ بس اس کا ہمیں جواب دے دو صحیح متصل سند کے ساتھ. ہمیں جو تم بولو گے ہم مان لیں گے. دیکھو ہم نے تمہیں پہلے والی بات بھی تو مانی نا کہ یزید کہاں ہے, مان لیں, اور ابھی تمہیں وہیں تک لے جا کے دکھا کے آئیں گے کہ وہ کہاں ہے. جن اہل بیت نے اس کی بیعت کی ان کا کیا حکم ہے؟ نہیں, سیدھا سوال ہے, ایک بھی مخالف نہیں ملے گا. سیدھا سوال ہے, ایک بھی مخالف نہیں ملے گا. تو کون کون سے نہیں, کون کون سا چاہیے جس نے بیعت نہیں کی؟ سمجھے میری بات؟ جیسے میں ایک ہی آدمی کا نام بتاتا ہوں, کچھ وہ مسئلہ حل ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بجتا ہے, وہ باہر نکلے, 3 آدمی کھڑے ہیں. کون؟ کہ بھائی شام سے ہیں. ہاں, تو وہ یزید کی بیعت کے لیے آئے ہیں. یزید کی بیعت کے لیے اس وقت, اور میرے گھر کے دروازے پر, مطلب کچھ کیا ہے یہ, کچھ چوری جھوٹ مکاری کا معاملہ ہے, کوئی غلط بات ہے؟ نہیں. تو کل مسجد میں سب کے سامنے کرنا نا, کل مسجد میں سب کے سامنے کرنا. حسین کہہ رہے ہیں کن کو؟ یزید کی طرف سے بیعت لینے کے لیے جو لوگ آئے ہیں یزید کی, انہیں حسین کہہ رہے کل مجھ سے یزید کے لیے بیعت کہاں لینا؟ سب کے سامنے مسجد میں. تو کون, یہی تو ہمارا سوال ہوتا ہے, کون تھا جس نے نہیں کی؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بس ہم یقین کریں, فیصلہ اپنے اوپر مت لیں, کیونکہ فیصلہ لینا گناہ ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کے پاس.
फैसला लेना गुनाह है। सामने वाला जैसे कि नहीं तुम बताओ जन्नत ये जहन्नम है, अब हमें क्या पता, ये तो अल्लाह कर बताएगा ना उसके बारे में क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, हम कराइन के ऊपर बात कर सकते हैं, और कराइन क्या है बताओ, कराइन क्या है? कराइन ये है कि खुद इस बेचारे को जाके देख कहना पड़ेगा कहां है, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं लगा कहां है। समझे हैं कुछ बात को? नहीं, थोड़ा समझे, आगे बढ़ के बात बोला। ये है ना थोड़े जज्बाती मैटर होते हैं। सामने वाला आदमी सुन के ओए यार यजीद को जन्नती कह दिया, अरे भाई कयामत आ गई। तो ये थोड़े जज्बाती मैटर होते हैं। लोग जो ना वो इतना इल्मी बात तो करते नहीं है, वो बड़े इल्मी बातों के दावेदार भी ऐसी बातों का आगे ऐसे जज्बाती रहते हैं कि अकल ही खो बैठते हैं अपनी। तो ये है थोड़ी बात, तो इसलिए हम कहते हैं सीधा साल है, सीधा सहाबा के मुंह को ना आओ। सहाबा के मुंह को आओगे तो वो तो फिर हम आखिरी बात भी तुमसे करेंगे। वो यजीद वजीद का मामला तो खैर है, वो अल्लाह नहीं पूछेगा इंशाल्लाह। आप 100 भी कर सकते हैं, दूसरों को भी मौका दीजिएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ। आप अभी कर लें, लेकिन मैं कह रहा हूँ दूसरों को भी मौका दीजिएगा। दूसरा सवाल ये कि आपकी तरफ से ये तासुर भी जाता है कि जैसे मिर्जा इंजीनियर है वो जो है जो पहले बेहतर दिखा रहा है, हालांकि वो कर नहीं रहा। मैंने ये तासुर दिया, मेरी तो हर वीडियो में मैं साबित करता हूँ वो अहले बैत का मुखालिफ है। यानी कि वो मौजूद जिसमें वो अहले बैत के फजाइल पढ़ के सुना रहा हूं, मैं वहां भी साबित कर रहा होता हूं वो अहले बैत का मुखालिफ है, उसकी अपनी तसरीहात से। पता नहीं, आप नाम लें किसी एक का, कौन करता है, और उसकी कोई ऐसी इबारत बताएं जो आपके इल्म हो। जैसे ये कहा जाएगा कि हम भी हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं, हम भी से क्या मतलब? ये कोई आलिम कहता हुआ मिला आपको? हम भी नाम लें। मैं बताऊं आपको ये हुआ क्या है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, बल्कि हुआ भी है कई मर्तबा। क्या होता है, एक बात मारूफ हो जाती है, एक शख्स इल्जाम लगा रहा है तुम अली को नहीं मानते, 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 तुम अली को नहीं मानते। ये अली को मानने के दलाइल पढ़ के सुना रहा थकार के, हाँ हम भी अली को मानते हैं। थकार के इसके मुंह निकला कि हाँ हम भी मान, जबकि बात ये थी ये ही अली का मानने वाला था, वो बिल्कुल नहीं था। जिसकी सबसे बड़ी दलील क्या थी? सबसे बड़ी दलील अली की ना थोड़ी के नीचे से 3 मुट्ठी दाढ़ी थी, इसकी है, इसकी नहीं। तो अली का मानने वाला कौन है? ये वो, समझो? वो ये बिल्कुल वो वाली बात है कि जब तक है ना कोई हिंदू एजेंट पकड़ा नहीं जाता, पाकिस्तान में क्या बना फिर रहा होता वो सच्चा और पक्का मुहिब वतन पाकिस्तानी। लेकिन जिस दिन पकड़ा जाता है इंट्रोगेशन में क्या साबित होता है, क्या था? हिंदू एजेंट था। ये जितने लोग हैं ना हुब्बे अली के दावेदार, इनमें से अक्सरियत जो ना इब्ने सबा के एजेंट है, अब्दुल्ला बिन सबा एंड पार्टी है ये। और किसी भाई का कुछ सवाल हो? सीने पे हाथ बांधने के कायल थे। जी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने का कायल। देखिए सबसे आसान बात है समझने के लिए, बिल्कुल। अगर उन्होंने बैत कर ली थी तो फिर ये नहीं, उन्होंने बेत नहीं की थी। हुआ यह था कि उनके पास जो खतूत कूफे से आए हुए थे ना, उनकी अगले दिन तक शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि उनको पता था कि अगर कूफियों को ये अंदाज़ा हो गया कि हर शख्स ने यजीद की बैत कर ली है, तो वो शोरश और साजिश की चिंगारी जो कूफे से उठ रही है वो वहां दब के बैठ जाएगी। तो ये और बिल्कुल उस तरह नुकसान पहुंचाएगी जिस तरह नुकसान उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ था, जिस तरह अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ था। उन्होंने अपने भाई की सुन्नत पे अमल करते हुए क्या किया कि पहले वो खामोशी से जाके उनसे बेत लेना चाहते थे, जैसे उनके बड़े भाई ने ली, और जैसे फिर हसन ने बेत तफवीज़ कर दी माविया के हाथ, ऐसी हुसैन बेत तफवीज़ कर देते यजीद के हाथ। यही भाप कर कूफियों ने उनके साथ ये किया था, यही भापा था कूफियों ने उनसे कि ये करने के लिए आए हैं, तभी उन्होंने जना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। सर सवाल किया था, 2 जवाब दीजिएगा। आपने कहा नहीं,
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو شہید کیا جی یزید نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ کر بھی کیا سکتا تھا. مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی. مجھے میں بتا رہا ہوں, میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا, میرے جواب پہ فوکس کریں. یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں, ہاں بیٹھے ہیں, میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, بیٹھے تو صحیح. تو آج بالکل ایسے نا واضح ہو کے مجھے دیکھیں, تھوڑا یہ فوکس کریں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میر مرتضیٰ بھٹو کو جانتے ہیں؟ بے نظیر کا بھائی. بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم رہی ہے, اس کا بھائی تھا میر مرتضیٰ بھٹو. اس کو جانتے ہیں بھائی جان؟ بیٹے بیٹھ جائیں. ہاں جانتے ہیں؟ نہیں جان. چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. میر مرتضیٰ بھٹو اس کا سگا بھائی تھا اور باقاعدہ الذوالفقار کے نام سے ایک ٹیررسٹ ونگ چلاتا تھا. سنو, توجہ سنو میری بات. وہ کیا کرتا تھا, بہن اس کی کون ہے؟ بہن اس کی وزیر اعظم ہے. بہن اس کی کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے. اس کی بہن وزیر اعظم ہے, اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے ذرا سمجھنا بات کو, میر مرتضیٰ بھٹو کو ہے نا فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بہن کون ہے؟ دیکھو نہیں کر رہے توجہ. بہن وزیر اعظم ہے, سگا بھائی اس کو لوگوں نے کراچی میں مار دیا. اور مارنے والے پتہ کون تھے؟ پولیس موبائل آئی تھی, پولیس موبائل نے فائرنگ کی ہے گاڑی کے اوپر, پولیس موبائل نے. ٹھیک ہے, پوچھیں کسی سے بھی, دنیا میں چلے جائیں پوچھیں میر مرتضیٰ بھٹو کا قاتل کون ہے, پتہ جواب کیا ملے گا؟ پتہ نہیں بھائی کس نے مارا. اور سنے آگے, اور جبکہ میر مرتضیٰ بھٹو کوئی عاشق 1000 سال پہلے نہیں مارا گیا ہے, یہ ابھی 35-40 سال پہلے, جب آپ کی قانونی معاملات, یہ کیمرہ فلانے ڈمکے سب چیزیں, آپ بہت باصلاحیت ہو چکے تھے. یہ واقعہ تو ایک گنجان بیابان کے اندر پیش آیا تھا, بلوا کر کے شہید کیا گیا تھا اس واقعے میں تو کربلا والے میں. یہاں تو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ایک بندے کو. اور سنیں, اسے بھی چھوڑ دیں. بے نظیر بھٹو کو مارا گیا, وہ تو پتہ ہے نا کہاں مارا ہے؟ دارالحکومت میں مارا ہے بھائی, ساری سیکیورٹی کے درمیان مارا ہے. اور یہ اتنی دور 8 فٹ سے گولی ماری ہے. مارنے والا پکڑا گیا. یہ سارے بیٹھے ہوئے بہت سارے سیاسی شگف رکھنے والے لوگ ہوں گے, پوچھ لیں کوئی بتا دے کہ وہ پکڑا گیا. نہیں پکڑا. یاد رکھیے گا میری اس بات کو, یاد رکھیے گا اس بات کو. اسپیشل مشن کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا, وہ 2 ہی رستے اپنے پاس لے کر آتے ہیں. یا تو بھاگنے کی مہارت کہ پکڑے نہ جائیں, اور یا اگر پکڑے جائیں تو خود کو مار لیں. جیسے کہ علی پہ حملہ کرنے والے ابن ملجم نے خود کو ہی ذبح کر لیا تھا کہ کسی طرح میں پکڑ میں آ گیا تو پوری پیچھے سازش بے نقاب ہو جائے گی. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ غلطی وہ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے انہوں نے حسین اور ان کے خانوادے پہ حملہ کیا, اور حملہ کر کے فوراً ہی رفو چکر ہو گئے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ سمجھے نہیں ہے, آپ کا دماغ وہ فوکس کر ہی نہیں رہا میری طرف. سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ میں نے آخری بات کیا کی؟ کون تھے؟ کون تھے شہید کرنے والے؟ دیکھو, یہی فوکس نہ کرنے کا نتیجہ ہے. میں نے یہ لفظ تک منہ سے نہیں نکالا, آپ سمجھے ہی نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں نے آخر میں کیا بولا. میں یہ کہہ رہا تھا میں نے آخر میں کیا بولا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کیا بول رہے ہیں. دیکھو یہ ہے فوکس نہ کرنے کا نتیجہ. میں اتنی دیر بولتا بھی رہوں گا, اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کیا لگے گا, یار شیخ صاحب نے میرا تو جواب دیا ہی نہیں. آپ ایسا سمجھیں گے, اس لیے دوبارہ فوکس کریں. میں پھر آپ کو توجہ دلاتا ہوں. بتائیے ذرا اس بات کو, ایک بیابان کے اندر ایک خاندانی لشکر پہ یعنی ایک خاندانی قافلے پہ حملہ کر کے اس کو شہید کر دینا زیادہ آسان ہے, یا ایک سیکیورٹی پروٹوکول میں ملک کی سابق وزیر اعظم کو صرف 8 فٹ دوری سے گولی مار دینا کیا آسان ہے؟ جی ہے نا. اور پھر اس 8 فٹ دوری سے جس نے گولی ماری ہے اس کا بھاگ جانا زیادہ آسان ہے, یا اس جنگل بیابان سے لوگوں کا بھاگ جانا آسان ہے؟ بس یہ میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد تنصد اس لیے کہتے ہیں نا, وہ ایک تو بھاگ کے ٹھیک ہے, ایک تنصد اس لیے کہتے ہیں دال میں رکھ کے صحیح بخاری کی
पता हम ठीक है इस्लाम से 60 या नहीं आज के बाद नहीं 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 नहीं, सुनो जरा बात को। एक है कि आपको सर मिला और आप लेके आए, एक है कि आप सर काट के लेके आए। इन दो बातों में फर्क है। हदीस को कह रहा हूं, ये हदीस मुझे नहीं पता। आप इस्लाम 360 में निकाल के अभी पढ़ ले, आपको इंशाल्लाह मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। जो आपने भी एक बात की है ना कि आज के बाद इस्लाम 360 में भी भरोसा करना है नहीं करना है, अब आज से ही करने लगोगे भरोसा मेरी बात पे। मैं ये कह रहा हूं कि वो छड़ी लो मार दो बराबर नहीं नहीं, मारने के अल्फाज ही नहीं है। छड़ी लगा के ये बहुत सारी उसके अंदर भी इसके अल्फाज हैं जो बुखारी में हैं। इस्लाम 360 मैं ये पूछ रहा हूं कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका हम ये बहस क्या क्या नहीं, आप पहले ये नहीं पूछ रहे थे। नहीं आप अरे यार सर, आप पहले ये नहीं पूछ रहे थे, मैं बता रहा हूं ना। आप ये कह रहे थे कि आप, यानी मैंने कहा कि वो भाग गए लोग, तो आपने कहा नहीं वो तो सर लेकर आए। तो मैंने उसमें कहा, सुने ना, देखो आपने ये जुमला बोला है ना कि वो सर लेकर आए, तो मैंने कहा एक है मिला हुआ सर लेकर आना और एक है सर काट के लाना। रिबात में कौन से अल्फाज है? मैंने ये बात जंगल बियाबान से बोली थी। आपने कहा जंगल बियाबान था, इस बात में नहीं बोली बात। तो जंगल बियाबान से लाश तो मिलेगी ना भाई, कातिल थोड़ी मिलेंगे। वही कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो मैंने ये पूछा नहीं है जंगल बियाबान वो आ गई। अब वो जो सरवरी बात है वो आप इसको ये बात हुई सिंपल, तो वो हदीस नहीं थी, खत्म हो जाएगी बात। नहीं, मैं क्यों बोलूं ऐसा ठीक नहीं है। आप समझे ही नहीं, आप उसे गलत पढ़ रहे हैं। आपसे एक बार उसको बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर लाया गया और वो देख के घबराहट में उस सर को देखकर वो काफ़ी देर तक तो परेशान रहा। फिर उसने ऐसे इशारा करके ना कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी मैंने आज तक इनसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो वहाँ अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, वो कहने लगे ये अपने नाना के मुशाबे हैं। ये है पूरी रिवायत। अभी निकाल ले इस्लाम 360। मैंने ये ठीक होगा आपकी बात एग्री कर ली। मैं कह रहा हूँ जो हामद ये को हदीस बता रहे हैं वो हदीस नहीं थी। ये जो बहुत से वाली वो छड़ी वाली हदीस थी बिल्कुल नहीं थी। इंतहाई माजरत के साथ मेरे साथ इंसाफ करें। मैं पूछ अरे सर, मैं वही कह रहा हूं, मेरी तो सुने। मैं कह रहा हूं, आपने कहा देखो जी हम, ये रिवायत है सही बुखारी में, इस्लाम 360 में आता है। मैंने फौरन कहा ये है सही बुखारी की रिवायत, ये है उसके अल्फाज। अब आप इस्लाम 360 निकाल के देख लो। आप वो भी तो एक मिनट के लिए निकाल के नहीं देख रहे हो ना कि ये निकाल के तो देख लूं, हाँ वो अल्फाज है भी या नहीं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आपको एग्री करो, मैंने इस चीज बहस नहीं करा कि नहीं है। मैं तब देखो कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ एग्री कर लिया आपकी बात से, हमने एग्री कर लिया सर्टिफिकेट। मैं ये कह रहा हूँ जो अल्फाज हमें सुनाए गए, हमें हमारे काम तक आए हैं, क्या वो अल्फाज ठीक नहीं है तो उसको बात खत्म हो जाएगी? नहीं वो अल्फाज नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ तो समझना ज़रा बात को। मैंने ये बात थोड़ी देर पहले भी बोली थी, आपने उस पर एक तंजिया तौर पे जुमला बोला कि पता नहीं आज के बाद इस्लाम 360 भी सही होगा या नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, कि पता नहीं आज के बाद इस्लाम 360 भी सही होगा या नहीं होगा। तो जो अभी आप मुझे कहने के लिए कह रहे हो ना कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो रिवायत मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जल्फा वो सही है या नहीं, मैं जैसे ही कह दूंगा ना नहीं, हम एग्री करेंगे। तो पहले क्यों नहीं किया इस्लाम 360 वाली बात पर? नहीं वो हम एग्री करें। मैंने आपकी सिंपल बात सर आपने मेरे ऊपर ये सर आपने जुमला क्या बोला, पता नहीं आज के बाद इस्लाम 360 भी सही होगा या नहीं, जबकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे भाई सिर्फ तर्जुमा पढ़ के साहबा के बारे में फैसले मत करो, मैं तो ये कह रहा था, है ना। लेकिन आपने मेरी नुमाइंदगी गलत की, आपने मेरे जिम्मे वो बात लगाई जो मैं कह ही नहीं रहा था। ये है बस मेरी इतनी बात। देखें, ये कहना कि उसने छड़ी मारी, उसने छड़ी मारी या कुरेदा, जो वहीदुज़्ज़मा ने तर्जुमा किया है कुरेदा, मेरी इस पे 1 घंटे की वीडियो है कि तर्जुमा गलत है, मैंने दलाइल से साबित किया है। और सुनने जरा बात को भाईजान, तवज्जो करें। मैं ये मायने भी कर लूं कि छड़ी मारी और मैं ये मायने भी कर लूं कि कुरेदा, अगर ये कुरेदना ही हो और बानियत तौहीन हो तो बराबर में कौन बैठे हैं? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनते हैं जुमला कि मैंने इनसे ज्यादा खूबसूरत इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो अनस बिन मालिक इसका तो जवाब दे रहे हैं कि ये अपने नाना के मुशाबे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे अबे जलील बदबख्त आदमी छड़ी तो हटा। वो अभी वो
ताकत का कुछ तो होगा कि ताकत तो है कि नहीं। अभी भी अब आप कहते हैं इतने आपने सारी गेम्स नहीं जो भी जो अगर यजीद ऐसा आपके सामने कर अगर यजीद ऐसा आपके सामने कर रहा होता, अगर यजीद ऐसा, यार बात तो सुने, अरे बात तो सुने, यजीद अगर आपके सामने यही हरकत कर रहा होता आप क्या करते? सर यजीद, सर मेरे सवाल का जवाब दें। जी एक मिनट, हाँ एक मिनट, मुझे था अंदाजा, आप बैठ जाए। फौज का कोई गवर्नर आ जाए तो कोई बंदा नहीं बोलेगा। आप यजीद की बात करें, फौज का छोटा सा गवर्नर आ जाए अभी कोई बंदा नहीं बोलेगा, है ना। अब हो गई ये बात, ये ताकत है ना, ये हो गई बात। असर ये हो गई बात, ये मैं पहले भी दफा में समझ गया था ना। आप मेरे सवाल का जवाब दें। यजीद ये हरकत आपके सामने कर रहा होता आप क्या करते? मैं आपको वही सर मैं वो समझ गया, आप मेरी बात का तो जवाब दो। ताकत खामोश ही हो गए, ताकत है कौन बोलेगा? कोई बोलेगा, मैं कहूँ कोई नहीं बोलेगा। बेहतरीन, जबरदस्त बेहतरीन। अब मुझे बताओ, आप पर यह इल्जाम लगेगा कि आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते? लगेगा ना? तो अनस बिन मालिक पे लगाओ ये इल्जाम। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं सर आप ये कहां कह रहे हो? सर आपने जो कहा, मैं दोबारा आपकी बात लेके चलता हूं, इंतहाई मादरत के साथ मैं आपकी बात लेके चलता हूं। मैंने आपसे कहा ये बराबर में कौन बैठे? आपने कहा अनस बिन मालिक। मैंने कहा सुनना, मैं अगर एक जेर जबर भी आगे पीछे करूं तो आप मुझे कहना। आपने मुझे कहा नहीं वो आपकी बात सही है। अभी तो आपने कहा गवर्नर फौजी फला अगर आ जाए कौन उसके आगे बोलता है। मैंने कहा मैं ये आपकी बात समझ गया। अब मुझे ये बताएं आप होते तो क्या करते? आपने कहा नहीं मैं भी यही करता कि खामोश रहता। मैंने कहा अब मुझे बताओ आप पर क्या हुक्म लगेगा, क्या आप अहले बैत के मानने वाले हैं या नहीं? तो आपने जवाब में कहा नहीं। मैंने कहा अनस बिन मालिक को हुक्म लगाओ, क्या लगेगा? तो आप कह रहे हैं मेरा ये मतलब नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। नहीं सर मैंने अब आपके निकल के आ चुके ना यार, जाएगी क्योंकि ये आप गलत नहीं हो, मैं भी आपकी जगह होता भाईजान। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको कह रहा हूं आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बहस नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा आप समझने में सबको मदद दे रहे हैं। यकीन करें यही वो बात है कि हम कहते हैं बातों को उनकी गहराइयों से समझने की जरूरत है। आखिरकार साहबा पे इल्जाम जा रहा है नहीं जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं आपको बात को, जब मैं एक मायने मफहूम हदीस में साबित शुदा जानता ही नहीं हूं कहीं, उसकी बुनियाद पर मैं अनस बिन मालिक के लिए इतना बड़ा गुमान कैसे रख लूं कि नहीं जी वो छड़ी नहीं हटा सका, वो यजीद की ताकत के आगे मजबूर हो गया, वो उसने अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त कर ली लेकिन अपना किरदार अदा नहीं किया। नहीं सर पहले, अरे नहीं सर पहले वाले अल्फाज, अरे नहीं सर आपने अभी थोड़ी देर, अरे नहीं सर आपने अभी थोड़ी देर पहले जुमला बोला, नहीं सर आपने थोड़ी देर पहले जुमला बोला कि ये अल्फाज साबित हैं या नहीं? जी मैं अभी नहीं सर आप ना हो, मैं तो ये कह रहा, अरे आप बात तो सुने, अरे सर बात तो सुने। नहीं एग्री नहीं करें। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर पहले आपका जुमला बोला हुआ पता क्या था? आपने बोला कि ये अल्फाज शेख साहब इतना बता दें कि साबित है या नहीं। तो मैंने जवाब के अंदर क्या बोला कि अगर मैं आपसे ये कहूंगा ये अल्फाज साबित नहीं हैं तो क्या सिर्फ मेरे कहने पर आप मान लेंगे? आप सर देख अब रुकिए ना, देखो यार अभी तो आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। मैंने मान लिया और अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम एग्री करेंगे, हम आपकी बात क्या है 6 दफा मैंने आपको बोला है, आप कहेंगे नहीं मैं कहूं एग्री और बात खत्म हो जाएगी। सर मैंने उसी वक्त बोल दिया था। एग्री नहीं कराना चाह रहे सर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ एग्री नहीं करवाना चाह रहा। आप मेरी बात सुने ना मोहतरम भाई, मैं कह रहा हूं आपने कहा, अजीम भाई ये सुनिएगा जरा बात को, आपने कहा शेख साहब ये अल्फाज सही है नहीं? अजीम भाई मैंने कहा ये अल्फाज सही है नहीं? आपने कहा ना मुझसे, मैंने कहा नहीं जनाब ये सही नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने वो पूरी वजह बताई। आपने फौरन मुझे पलट के पता क्या कहा? नहीं शेख साहब वो आपकी बात सही है। सवाल ये पैदा होता है अनस बिन मालिक ही नहीं कोई भी किसी ताकतवर आदमी के आगे कैसे बोलेगा। फिर मैं इसकी वजाहत देने लगा आपको, तो नतीजा निकला कि अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त की जा रही है। फिर मैं इसे समझाने लगा आपको, तो आप मुझे पलट के कह रहे हैं नहीं शेख साहब मैं बहस करना नहीं चाह रहा, मेरा मकसद ये नहीं था, आप ये बोल दें वो बोल दें। यकीन करें मैं आपकी हर बात पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा आप नतीजा निकाल के देना चाह रहे हैं वैसा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये थोड़ी कर रहा हूं कि आप ये नहीं बोलो, आप ये नहीं करो, उस पर रुको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं फोकस करो कि आप एक उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। दो सुनना, इस फार्मूले को समझ लो, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। कोई भी सामने बैठा हो, मैं ही नहीं कोई भी बैठा हुआ सामने, एक है कि हुसैन का सर काट के यजीद के पास लेकर आए, और एक है कटा हुआ सर मिला और लेके आए, दोनों में फर्क है। तो जो काट के लाया और लाने वाला उस पर खामोश रहा, उस पर क्या हुक्म लगेगा?
मैं काट के लाया, और ये उबैदुल्ला बिन ज़ियाद यजीद का गवर्नर खामोश है। अब इस पे क्या हुक्म लगेगा कि ये चाहता था, ऐसे ना, साथ है अपन, यहां तक अपन साथ है ना, दोनों भाई साथ है। अब आओ मैं आपको मुस्तदरक हाकिम पढ़ के सुनाता हूं। मुस्तदरक हाकिम में रिवायत है, इब्ने अब्दूद, उसने जुबैर बिन अव्वाम को शहीद किया, सर काटा, सर लेके अली बिन अबी तालिब के पास आया। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहने लगा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुझे इजाजत तो है कि तू अंदर आए, पर मेरी तरफ से खुशखबरी ले ले, तू जहन्नम में जाएगा, तुझे जहन्नम की बशारत। अच्छा, आप अल्लाह अकबर तो कर रहे हो, एक नुक्ता नहीं समझ रहे। जुबैर बिन अव्वाम साहबी रसूल है, अशरा मुबशरा में से है, अशरा मुबशरा में से है, साहबी रसूल है। सर काट के अली के सामने लाने वाले को अली मार रहे हैं, अली पे क्या हुक्म लगेगा? मेरी जगह कोई और भी बैठा हो ना आइंदा, ये सवाल करना उससे पहले। अगर वो इस रिवायत की वजह से ये कहे ना कि जी यजीद कत्ल हुसैन पर राजी था, तो पूछें कि क्या अली बिन अबी तालिब जुबैर बिन अव्वाम के कत्ल पे राजी थे? नहीं ना, ऐसी यजीद पर भी इल्जाम नहीं आ सकता, जबकि सर यजीद के सामने नहीं गया है। सही रिवायत से जो साबित होता है, सर यजीद के सामने नहीं गया है। और जो इब्ने ज़ियाद के भी सामने गया ना, उसके भी रिवायत में जो असल लफ्ज़ है जिसके मायने छड़ी मारने के किए गए, उसके मायने तशवीश के होते हैं, परेशान होने के। क्योंकि एक शख्स नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो गाइडेंस समझ नहीं पा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए भेजा गया, और पहले ही दिन इतना बड़ा तारीख का सानिया पेश आ गया, तो उसके तो पैरों तले जमीन निकलेगी ना। ये मामला था कुछ और, इसको बनाया कुछ और गया। अब इसके बाद एक तीसरा आपको जवाब समझा रहा हूं। मेरी जगह कोई भी बैठा होगा, आपने ये बात करनी है उससे, और वो ये कि देखें, माना ताकत उसकी होते हुए कोई उसके आगे खड़ा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसकी बेत के लिए इन्हें मजबूर किया गया था? नहीं, ये चाहते तो वहां से निकल भी सकते थे, ये चाहते तो चले जाते। जैसे इसकी मिसाल देता हूं आपको, जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेत हुई, कितने ही सहाबा थे जो बाज़ शाम चले गए, बाज़ बसरा चले गए, मगर उन्होंने बेत नहीं की। तो अगर समझें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन यजीद को कत्ल हुसैन का किसी तरह भी सहूलतकार जानते, वो कभी भी यजीद की बेत रहने देते? कभी नहीं रहने देते। ये एक समझने की बात है, इल्मी बात है। तो हम कत्ल का इल्ज़ाम यजीद पे नहीं लगा सकते, ये हम कत्ल का इल्ज़ाम उन पे लगाएंगे कि जिन्होंने उस्मान को शहीद किया, जिन्होंने अली को, जिन्होंने हसन को, और बाद में जैसे मैं इसकी एक और आपको मिसाल देता हूं कि जिस वक्त उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए गए, उस वक्त यजीद अपनी मां के पेट में था। ऐसे अब पैदा भी नहीं हुआ था वो, मां के पेट में भी नहीं था वो, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों को शहीद करने वाले बागी मौजूद थे ना। तो बताइए, जब उन्होंने उस्मान को शहीद कर दिया, तहकीक का नुक्ता है, अब वो कहां गए? गायब, जमीन खा गए, आसमान निकल गया? नहीं, वो अपने हेडक्वार्टर चले गए। अब वापस आए, हमला किया 3 अफराद पे, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अली और माविया रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तो अली शहीद हो गए, अब्दुल्लाह बिन जुबैर जख्मी हो गया, माविया पे हमला करने वाले को पकड़ लिया गया, जिससे पूरी चेन निकली बाहर। ठीक है, जो पकड़े गए, जो मार दिए गए, जो भाग गए। उसके बाद इन्होंने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला किया, उन्हीं जख्मों की ताब न लाते हुए आखिर में उनका इंतकाल हुआ। और फिर बाद में इन्होंने ही हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खुतूत लिख के बनती हुई इस्लामी हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मुदब्बिराना बसीरत थी, वो इनको कैप्चर करने के लिए जा रहे थे। ये इनको तो प्लान बी पे अमल करना था ना, इन्होंने प्लान बी पे अमल किया और उनको शहीद कर दिया, ताकि जब बेनजीर की हुकूमत में, जबकि बेनजीर वजीर आजम हो, सगे भाई को एन क्लिफ्टन मेन रोड के ऊपर पुलिस मोबाइल से फायरिंग करके मार दिया जाए, इल्जाम किस पे आएगा? चारों नाचार बेनजीर पे, जबकि बेनजीर ने मारा नहीं था। बाद में ये बात साबित हुई,
मारने वाला कोई और था, मारने वाला कोई और था, वो बाद में साबित हुआ। ये है मेरे कहने का। किसी और भाई का सवाल हो? जी। मेरा ये सवाल है कि मिर्जा इंजीनियर कहता है कि ना जिस तरह रवायात में आता है मौजूद रवायत होती है, मुनकर रवायत होती है, तो उसमें ताबीन या तबा ताबीन आते हैं रावी, तो वो कहता है कि जब जैसे मौजूद रवायत आती है तो कहते हैं उसमें देखिए वो होते हैं ताबीन होते हैं, तो कहते हैं जो ताबीन होते हैं वो झूठे भी बेशुमार थे और सच्चे बेशुमार थे, वो बेशुमार झूठे। असल में मसला सारा ये है, आपने उर्दू की मिसाल सुनी होगी, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, ऐसे ना मिर्ज़ा बेचारे की वही मिसाल है, इंतहाई मादरत है, खुद झूठा है ना, तो हर जगह क्या दिखते हैं? झूठे दिखते हैं। अभी कोई पूछे ताबई की तारीफ क्या है, कोई पूछे ऐसे ताबई की तारीफ क्या है, तो ताबई की तारीफ है वो लोग कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नहीं पाया मगर असहाब रसूल को पाया, उनसे इल्म दीन सीखा और आगे उस इल्म दीन को रिवायत किया, ये लोग कौन कहलाते हैं? ताबई। अब समझें ज़रा इस बात को, जो हदीस गढ़ने वाला है अगर वो इल्म ले रहा होता तो हदीस गढ़ता, और ताबई की तारीफ में सहाबा से इल्म लेना है, तो जो हदीस गढ़ने वाला होगा उसको हम ताबई कैसे कहेंगे? नहीं समझे अभी भी? तो मैंने कहा ना, ये बेचारा सावन का अंधा है गरीब, इसको हर तरफ अपनी तरह कज़्ज़ाब ही कज़्ज़ाब नजर आता है। ये है मामला जी। साहब हैं वो कहते हैं कि जी जिस तरह अहादीस है उनका हम मान नहीं सकते कि वो सिर्फ अफसाने वगैरह हैं, वो कहते हैं कि जी हदीस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जैसे आपने नमाज सीखी कैसे सीखी, वो कहते हैं जी हमने अपने माँ बाप से सीखी, तो इसी तरह कहते हैं ज़कात नमाज इस तरह के सारे तो तवातुर से चले आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ तवातुर की जरूरत है, अहादीस तो सिर्फ किस्से कहानियाँ, तो इसका हम क्या जवाब है? सबसे आसान जवाब तो ये है कि तवातुर से दाढ़ी आ रही थी, गांधी साहब ने उसका इनकार कर दिया और उन्होंने कहा दाढ़ी दीन में नहीं अरबों के कल्चर में थी। ठीक है, तो इससे साबित हुआ कि उनके भी मुकल्लिदीन की तरह लेने के बाद कुछ और हैं और देने के कुछ और हैं। ये तो कोई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम हदीस से दीन नहीं लेते कोई मसला ना ले, हम तो हमेशा सामने वाले को कहते हैं भाई जो तू बोले वैसे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम हदीस से दीन को नहीं लेते। सवाल ये पैदा होता है कि जो कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद है, ये कहाँ से ले रहे हो आप? जैसे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कुरान है और ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब ये हदीस है, इसका कैसे पता लगेगा? नहीं समझे? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, ये तो कुरान है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनका, ये क्या है? ये पता कैसे लगेगा? यहां से एक आवाज आई थी, बता सकता कोई भाई? नहीं, वो तो एक वो अलग जवाब है। तो हम गांधी साहब के हवाले से बात करें। यह सनद, तवातुर नहीं, यह है सनद। सनद से पता लगता है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कुरान है और फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान भी कुरान है, लेकिन फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनहु सही बुखारी की रिवायत। ये तो हमें कुरान से हदीस से इस सनद से पता लगता है ना, ये तवातुर से नहीं पता लगता, इस सनद से पता लगता है। तवातुर तो उन लोगों का है कि जिन्होंने बकौल गांधी साहब का सिर्फ देख के किया है, देख के अपने से बड़ों को देख के, कुरान और हदीस को नहीं। तो कुरान और हदीस खुद क्या है, उसके लिए हमें सनद की जरूरत होती है। और समझे जरा इस बात को, जो हदीस है अगर हम कहने जी इसकी जरूरत नहीं है तो कुरान को हम कैसे लेंगे? है ताज कंपनी से, किससे? सनद के थ्रू ले सकते हैं ना। क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई मिसाल के तौर पे बेवकूफ़ आदमी गांधी साहब जैसे अदीब आदमी के सामने बैठ के सवाल कर ले, जी ये जो सूरह फातिहा है ये 30वें पारे में होनी चाहिए थी, शुरू में क्यों है? क्या जवाब होगा? या मिसाल के तौर पे समझे इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तलाक के मसाइल बयान कर रहा है, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन व तस्रीहुम बिइहसान। ये तलाक के मसाइल बयान करते करते बीच में एकदम अल्लाह कहता हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, उसके बाद फिर तलाक के मसाइल बताना शुरू हो जाता है। तरतीब सही नहीं लग रही। ये आयत यहाँ नहीं होनी चाहिए, सूरह मोमिनून की इब्तिदा में होनी चाहिए। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वहाँ होनी चाहिए, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए।
अब गांधी साहब जवाब में क्या बोलेंगे? तेरी अकल पे दीन ठहरा हुआ है। हम कहेंगे आपकी तो बिलउला नहीं है। अगर हमारी वाली पे नहीं है तो आप पर तो बिलउला नहीं है। यही तो हमने दर्स के शुरू में समझा कि अक्ल कुल होने का कोई दावेदार है नहीं है ना। तो दो तीन में से किसी एक कैटेगरी में आदमी जाएगा, या तो वो आलिम दीन होगा, या तालिब इल्म होगा, और या मुकल्लिद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला